Hello and welcome. Welcome to the eighth learning session of chapter number 1 of Science 1, which is gravitation. So far in this chapter, these are all the topics that we have covered so far. Right? So I'm not going to go into the details of each and every topic and recall what we studied in each and every topic. What I want you all to do is pause the video here and read the name of each and every topic and try to recall what all can you recall based on the name of the topic. I want you to do that exercise because we're at the very end of our learning session. Okay, I hope you paused the video, have read all the topics and have tried to recall what all can you remember about the topic. Okay, today we're going to look at some numerical problems based on kinematical equations of motion. Kinematical equations we had studied in detail in grade 9, so you might have to brush up a lot of equations that you studied in grade 9. Okay, so our objective will be students will be able to solve numerical problems based on kinematical equations of motion. So there are about 6 to 7 problems that I want us to solve together. But I did not want to put all of them together in one long video. Hence, I'm going to split that up. 3 of them we'll solve today. The remaining ones we'll solve in the next learning session. So you only have to learn 3 problems, 3 numerical problems in this learning session. Also, kinematical equations. Okay, I'll share this in the next slide. Okay, so these are the kinematical equations. So basic formula क्या है? V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square, V square is equal to U square plus 2S. ये तुम्हारे basic kinematical equations है. What is U? U is initial velocity. Starting में क्या speed है, starting में क्या velocity है. Speed and velocity में क्या फर्क होता है? Speed में direction नहीं बताना पड़ता है, velocity में direction बताना पड़ता है. That's the difference between speed and velocity. So U is initial velocity, यानी starting में क्या velocity है. V is final velocity. Next, A is acceleration, T is time. What is S? S is the displacement. Okay, what is displacement? If you remember, it is the shortest distance between 2 points. Okay, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैं ऐसा सीधा भी आ सकता हूँ, ऐसा टेढ़ा भी आ सकता हूँ, पूरा अर्थ का चक्कर लगा के भी आ सकता हूँ. दैट वोंट बी डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना पड़ेगा. ओके, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. सो एस इज डिस्प्लेसमेंट. बाकी सारे जो वेरिएबल्स है, बाकी सारे जो सिंबल्स है, उन सब के नाम तुम्हें पता है, राइट? सो दीज आर द 3 बेसिक काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन. V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square, V square is equal to U square plus 2S. Now, if you have a freely falling body, do you remember free fall? What is free fall? Free fall is when an object has only one force acting on it, and that one force is the Earth's gravitational pull. So we say that this object is under free fall, is experiencing free fall. तो free fall में सिर्फ एक ही force होगा और वो एक force gravitational attraction होगा अर्थ का. ओके, तो ये मॉडिफाई हो जाते हैं. इट्स द सेम 3 इक्वेशंस बट मॉडिफाई हो गया. कैसे मॉडिफाई हो गया? अगर तुम कोई ऑब्जेक्ट छोड़ रहे हो फ्री फॉल के लिए, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा. स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी 0 था, तो यहाँ पे अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 डाल दोगे तो u निकल जाएगा, राइट? सो v वैसे का वैसा, इक्वल टू साइन वैसे का वैसा, a के जगह पे स्मॉल g, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा उस पे, राइट? सो स्मॉल a के जगह पे स्मॉल g एंड t वैसे का वैसा. नेक्स्ट, s डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट अभी हाइट हो जाएगा, बिकॉज इफ आई लीव अ से फॉर एग्जांपल अ स्टोन फ्रॉम माय हैंड, तो उसका हाइट डिक्रीज होने वाला है, राइट? वैसा हॉरिजॉन्टली नहीं गिरने वाला है अर्थ के ग्रेविटी की वजह से. अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इट इज गोइंग टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड. इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट में कन्वर्ट हो जाता है. सो एस के यहाँ पे एच आ गया, एच फॉर हाइट. u 0 हो गया था, तो ये ut 0 इंटू टी ये हट जाएगा, 0 हो जाएगा ये, एंड अगेन a के जगह पे g आ जाएगा. यहाँ पे भी u स्क्वायर विल बी 0 स्क्वायर. u इज 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये टर्म हट जाएगा. v स्क्वायर वैसे का वैसा, 2 वैसे का वैसा, a के जगह पे स्मॉल g, s इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के जगह पे h. ओके, एंड द लास्ट पार्ट इज इफ यू थ्रो अ बॉडी अपवर्ड्स. किसी को ऊपर फेंक रहे हो तुम, अगर तुम किसी को ऊपर फेंक रहे हो तो u इज इक्वल टू माइनस जी टी. ऐसा क्यों लिखा है लोग ने? क्योंकि नेगेटिव साइन ये बता रहे कि वेलोसिटी कम होगी. जैसे तुम किसी भी चीज को ऊपर फेंकोगे, धीरे धीरे उसका स्पीड कम होने वाला है, उसका स्पीड 0 होने वाला है. अगेन व्हेन आई से स्पीड, it does not mean it does not have direction. Okay, speed and velocity mostly it's the same, बस velocity में उसमें direction add हो जाता है. So I'll use the word velocity now. So whenever I throw a stone upwards,
उसका वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होने वाला है, फिर 0 होने वाला, फिर वापस नीचे आने वाला, राइट। सो वेलोसिटी कम होने वाला है, इसलिए हम u इज इक्वल टू माइनस जी टी ले लेते हैं इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स। ओके, अगर किसी को ऊपर फेंक दिया तो तो बेसिकली जहां पे भी जी है सबका साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे प्लस जी के जगह पे माइनस जी, यहाँ पे प्लस जी के जगह पे यहाँ पे माइनस जी, कहाँ पे गया? ओके, यहाँ पे u भी ले लिया वो लोग ने। u भी इसके पास कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, राइट। इट विल हैव सम इनिशियल वेलोसिटी। इफ यू सी हियर इन बेसिक इक्वेशंस में से हम लोग ने फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए इक्वेशंस निकाले। सिमिलरली इन बेसिक इक्वेशंस में से अगर तुम किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हो वो सेम आ रहा है। देखो, किसी चीज को अगर ऊपर फेंक रहे हो तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0। हमें पता है क्यों, कोई भी चीज को ऊपर फेंको उसका वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होके एंड में 0 होने वाला है। हेंस यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा। तो v 0 हो गया, v 0 हो गया। तो तुम्हारे पास सिर्फ u बचेगा एंड u इज इक्वल टू ए टी की जगह पे माइनस जी टी लिखा है। क्यों माइनस आया? क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है इसलिए उसको माइनस साइन दिया। ओके, सिमिलरली इस इक्वेशन में से तुम मॉडिफाई करके यहाँ पे लिख सकते हो। एस के जगह पे हाइट आ गया क्योंकि सीधा ऊपर फेंका है। इनिशियल वेलोसिटी होगा भी, किसी वेलोसिटी से तुमने ऊपर फेंका होगा, तो यू टी, ये जो यू है वो 0 नहीं होने वाला, तो यू टी वैसे का वैसा रह गया। एंड ए के जगह पे माइनस जी डाल दिया, माइनस जी क्योंकि वो डिक्रीज होने वाला है। ओके, इट्स टूवर्ड्स it's downwards, it's the downwards direction. And finally ये थर्ड इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है तो ये v स्क्वायर 0 हो गया। तो क्या बच गया? u स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 2gh लिखा है, राइट। यहाँ पे a के जगह पे g हो गया। सो दीज आर जस्ट मॉडिफिकेशंस। तो बेसिकली तुम्हें सिर्फ ये 3 फॉर्मूलाज याद रखने। इफ यू रिमेंबर दीज 3 formulas correctly and you are very clear with the concept of free fall and you're very confident with the concept of a body thrown upwards, then you can simply modify these 3 equations to get these 6 equations. इन सबको अलग अलग बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। ओनली रिमेंबर दीज 3 formulas. If you remember these 3 formulas, तुम प्रॉब्लम को पढ़ के उसमें छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस कर सकते हो इस तरीके से। ओके, so you're done with formulas. And see, again I'm telling you there are many formulas in this chapter. Okay, there are many formulas. You have to write all formulas in this chapter on one page and stick it somewhere in your room where you can see it again and again. And only when you see it again and again, you'll be able to by heart all the formulas. वरना exam में definitely confusion होगा. You have to revise it again and again. Every 1 week, every 2 weeks, you have to keep memorizing them. Only then all these formulas from this chapter will be by hearted. Okay, and इस chapter से mostly problems ही आते हैं board exam में, बाकी सारी चीजें rarely आती है। So problems are very important part of this chapter from board exam point of view. Okay, and in today's learning session also the calculations are very easy. अभी हमने जो पिछला लर्निंग सेशन देखा था उसमें कैलकुलेशन कहीं कहीं पे चैलेंजिंग थे, राइट। some calculations were challenging, but यहाँ पे today's learning session all the calculations will be very easy. I promise you that calculations बहुत easy होने वाले हैं. What is going to be difficult and what you need to focus on and improve your skill about is कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। अगर तुम्हें समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, then you will feel much very much comfortable in today's learning session, and that's what you should try and learn by the end of this learning session. कि अगर क्वेश्चन दिया है, if I'm able to write given to find, can I correctly identify कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। ओके, and the structure is going to remain same, given, to find, formula, calculation, final answer. ये 5 steps होने वाले हैं। The structure for solving the problems is going to remain the same. Okay, so let us begin now with the first question, which is an end of chapter question given on page number 15. An object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meters on a planet. Okay, 5 सेकंड लग रहे ग्राउंड पे पहुंचने के लिए, कौन सी हाइट से? 5 मीटर्स के हाइट से एक प्लैनेट के ऊपर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑन द प्लैनेट? तो उस प्लैनेट पे स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या वैल्यू है? आई एम गोइंग टू आस्क यू टू डू इज pause the video here, write given and to find. Okay, first write given and to find by yourself and then we'll discuss it further. Okay, I hope you pause the video and are ready with your given and to find. Okay, so given में क्या आएगा? given में सबसे पहली बार टाइम, क्योंकि टाइम क्या बोला? 5 सेकेंड्स लगते हैं हाइट ऑफ 5 मीटर से ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, और हाइट दिया 5 मीटर्स, राइट।
सो टाइम उसका सिंबल क्या है, स्मॉल टी 5 सेकेंड्स। हाइट का सिंबल क्या है, एस ले लिया। देखो हाइट का सिंबल गिवन में एस ले लिया, क्यों? क्योंकि हमें पता है दैट इज गोइंग टू बी आवर डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो 5 meters। नेक्स्ट टू फाइंड, क्या फाइंड करने बोला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लेनेट। तो टू फाइंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल जी। नाउ थिंक विच फॉर्मूला विल यू अप्लाई। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें एस यूज होता है, टी यूज होता है और जी भी आ जाएगा। जी, एस एंड टी, इन तीनों को कनेक्ट करने वाला कौन सा फॉर्मूला है? रिमेंबर द थ्री बेसिक काइनेमेटिकल फॉर्मूलाज। तीन बेसिक काइनेमेटिकल फॉर्मूलाज अगर तुम्हें याद होंगे तो तुम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। विच फॉर्मूला विल यू यूज that is going to connect all three, small t, small s and g. I'll wait for 5 seconds for you to come up with an answer. You can pause the video if you need to. Okay, I hope you are done and ready with the answer. The correct answer was s is equal to ut plus half gt square। at square के यहाँ पे gt square आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये acceleration gravity की वजह से है। सो gt square, तो s is equal to ut plus half gt square। देखो यहाँ पे s आ गया तो s यहाँ पे यूज कर सकते हो। t आ गया, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है। स्मॉल जी भी आ गया, यहाँ पे आ गया। यू क्या होगा, सी, ये फ्री फॉल है, राइट? सिर्फ ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ रहा है। फ्री फॉल है तो यू जीरो होने वाला है, सो दैट वी कैन पुट, राइट? So again I'm going to wait for 5 seconds for you to pause the video and do the calculation। सब कुछ हमें पता है, अभी तुम्हें बस सब्स्टिट्यूट करना और फाइंड आउट करना है। So I'll wait for 5 seconds for you to substitute the values, do the calculations and come up with the final answer. Okay? Okay, 5 seconds are up. I hope you paused the video, have substituted all the values in the formula and have come up with the final answer. Let us check the calculations. So this was your formula and we'll start with the calculations and here it goes. First S क्या है, S है 5 meters, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। नेक्स्ट ut, u मैंने क्या बोला था, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, राइट? इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को ऐसा छोड़ दिया, ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया तो इनिशियली स्टार्टिंग में उसका स्पीड, उसका वेलोसिटी जीरो था, तो u को जीरो ले लिया, इंटू टी प्लस हाफ जी, जी फाइंड आउट करना है उसको वैसे के वैसे लिखा। टी कितना है, 5 सेकेंड्स, तो 5 स्क्वायर। यहाँ पे भी तुम 5 लिख सकते हो, 0 इंटू 5 जीरो हो जाएगा, या फिर इसको टी भी रख सकते हो, तो 0 इंटू टी भी जीरो हो जाएगा, तो चलेगा, कुछ भी चलेगा। ओके, सो क्या मिल गया, ये पार्ट तो जीरो हो गया, तो 5 इज इक्वल टू हाफ g into 25। 5 स्क्वायर क्या आ गया, 25। then what you want to do is you're going to multiply 2 over here and ये 25 जो यहाँ पे multiply हो रहा है यहाँ पे जाके divide हो जाएगा। okay, so what will you get, you will get 2 divided by 5 over here। okay, क्योंकि 5 and 5 cancel, 5 and 25 cancel हो जाएगा, right? 5 1 are 5, 5 5 are 25, तो ये 2 ऊपर चला गया था और यहाँ पे जो 5 बच गए डिनोमिनेटर में आ जाएगा। so 2 divided by 5, so 2 divided by 5 is 0.4 meters per second square। you need to remember the unit of acceleration। ये acceleration है तो acceleration का unit है mass, mass नहीं, meter per second square। is your sum done here? Answer is no, you haven't written the final answer, so write the final answer in statement form। the gravitational acceleration of the planet is 0.4 meters per second square and that you will put in pencil box and then you will be done with your answer। simple tha, very simple, right? all you have to do was, I think what was the most important step here was the formula। तुम्हें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। once you identify that correctly, फिर सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करना काफी इजी है, काइनेमेटिकल इक्वेशन पे बेस्ड जो सम्स है उनमें। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। So here is our second question for the day। it's a solved example given on page number 6। okay, in the above example, abhi above example kahan pe, I've put the above example here। so Mahindra and Virat are sitting at a distance of 1 meter from each other। their masses are 75 kgs and 8 kgs respectively। what is the gravitational force between them? so we have already solved this sum, I think in learning session 3। महेंद्र और विराट एक बेंच पे बैठे हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे एक दूसरे से, उनका मास दे दिया और उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना था और वो 4 पॉइंट समथिंग समथिंग 10⁻⁻11 ऐसा कुछ तो आता है हमें। ओके, सो आई ऑलरेडी सॉल्व दैट सम। in that example, assuming that the bench on which Mahindra is sitting is frictionless, starting with zero velocity, what will be Mahindra's velocity of motion towards Virat after 1 second? Will this velocity change with time and how? Okay, so हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इस सम के बाद, राइट, कि महेंद्र और विराट
एक बेंच पे बैठे हैं एंड उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, यूजिंग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ हमने दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला, इट्स नॉन जीरो। सो कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रहा है वो फोर्स। ओके, फिर भी वो लोग एक दूसरे की तरफ मूव क्यों नहीं होते? एंड वी आर डिस्कस द आंसर, राइट, द रीजन बिहाइंड इट। अगर तुम और मैं एक बेंच पे बैठे हैं, हमारी दोनों के बॉडीज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बट स्टिल आवर बॉडीज डोंट मूव टुवर्ड्स ईच अदर। द रीजन बीइंग वो फोर्स बहुत छोटा होता है, इट्स वेरी स्मॉल। हमने देखा था 10⁻⁻11, सो 0 पॉइंट के बाद 10 जीरो, फिर बाद में एक नंबर आएगा, इतना छोटा फोर्स लगता है। सो वेरी स्मॉल फोर्स, राइट। एंड हम जिस बेंच पे बैठे हैं उस पे फ्रिक्शनल फोर्स होता है। व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? कोई भी दो चीजें एक दूसरे के ऊपर रब होती है तो अपोज होता है, राइट। मैं जब ऐसा रब करने की कोशिश कर रहा हूँ तब ऑपोजिशन है, मुझे रब करने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा है। वो जो ऑपोजिशन है, वो जो रेजिस्टेंस है, उसको फ्रिक्शन वाला फोर्स बोलते हैं, राइट। सो वो फ्रिक्शन वाला फोर्स इज सो स्ट्रॉन्ग दैट द बॉडीज वोंट मूव टुवर्ड्स ईच अदर। तो अभी यहाँ पे क्या अज्यूम करने बोल रहा है? द बेंच ऑन विच महेंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस। तो महेंद्र के लिए जो बेंच है वो फ्रिक्शनलेस है। तो फ्रिक्शनलेस है मतलब क्या? अगर समझो साबुन वाला पानी तुमने फ्लोर पे डाल दिया तो बहुत स्लिपरी होने वाला, राइट। तुम लोग इजीली फिसल जाओगे। इजीली क्यों फिसलते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन कम होता है। Generally it's easier to walk on road, for example concrete road. Why? Because friction बहुत strong होता है तो हमारे पैर फिसलते नहीं है, राइट। बट अगर समझो पानी है, साबुन वाला पानी है, आइस है, हमारे पैर काफी इजीली फिसल जाएंगे, विल स्लिप वेरी इजीली बिकॉज फ्रिक्शन कम हो जाता है। तभी समझो फ्रिक्शन जीरो हो गया। फ्रिक्शन जीरो हो गया तो महिंद्रा का बॉडी जो है उसको विराट की तरफ जाने से कौन रोक रहा था? वो फ्रिक्शन रोक रहा था। फ्रिक्शन जीरो हो गया, एकदम स्लिपरी हो गया वो बेंच, तो अभी वो मूव करना शुरू करेगा। तो स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी जीरो है समझ लो। तो महिंद्रा का वेलोसिटी क्या होगा विराट की तरफ 1 सेकंड के बाद? तो स्टार्टिंग में जीरो वेलोसिटी है, फिर वो मूव करना शुरू होगा इस छोटे से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। 1 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा? ये जो वेलोसिटी है, सी लास्ट क्वेश्चन इज विल दिस वेलोसिटी चेंज विद टाइम एंड हाउ? तो ये जो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी है वो वापस चेंज होने वाला है और कैसे चेंज होने वाला है? दैट्स व्हाट दे हैव आस्क्ड। ओके, सो लेट्स सी व्हाट विल बी coming in given. So given में force on Mahindra which is F 4.002 into 10 raised to -7. So I said -11, right? -11 ही -7 आया था न्यूटन्स। और ये कैसे आया था? ये फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करके आया था। इट्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन बिकॉज ये फर्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करके हमें ये फोर्स मिला था 4.002 into 10 raised to -7 न्यूटन्स। तो जीरो के बाद 7, सॉरी 0 पॉइंट के बाद 7 जीरोज आएंगे। ओके, 0 पॉइंट के बाद 7 जीरोज आएंगे और फिर तुम्हारा नंबर शुरू होगा। तो इतना छोटा वो फोर्स है। so it's a very small force. फिर महिंद्रा का मास 75 kg. There are two things which are missing, which are very important to know, and they are very important to put in given. Can you figure them out? ऐसे कौन से दो चीजें हैं जो यहाँ पे नहीं लिखे हैं given में, that will be used in the sum? I'll wait for 5 seconds for you to pause the video and write those given. Okay, वो जो दो important चीज जो नहीं लिखी है हमने, जो यूज हो सकती है हमारे प्रॉब्लम में। Okay, 5 seconds are up. I hope you figured it out. So दो चीजें जो यहाँ पे नहीं लिखी है वो है, सबसे पहली बात स्टार्टिंग विथ जीरो वेलोसिटी, राइट। स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होगी वो जीरो वेलोसिटी होगी। इसका मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी विच इज u, स्मॉल u विल बी जीरो। तो यहाँ तुम्हें लिखना पड़ेगा, ओके, इनिशियल वेलोसिटी ब्रैकेट में स्मॉल u इज इक्वल टू जीरो। अनदर थिंग इज they have asked velocity after 1 second. 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी पूछा है तो टाइम स्मॉल t इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो ये दो चीजें ऐड कर दो गिवन में। ओके, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो एंड टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड। दोस टू थिंग्स यू हैव टू ऐड इन गिवन। नेक्स्ट, टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करने वाला? वेलोसिटी फाइंड आउट करने बोला है। सो टू फाइंड विल बी वेलोसिटी। which formula will you use? Again I'm going to wait for 5 seconds for you to see the given. given में फोर्स है, मास है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, टाइम 1 सेकंड है। ये चार चीजें देने के बाद कैन यू फिगर आउट कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा? ओके, आई विल वेट फॉर 5 सेकंड्स फॉर यू टू पॉज द वीडियो एंड फिगर आउट कौन से फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज हो सकते हैं। Okay, 5 seconds are up. I hope you have at least thought about it. It's okay if you did not get the correct ones. At least hope that you thought about which formulas can be applicable here. So now see, again you have to do back calculation. We have learned back calculation in mathematics, right? क्या find out करना है? Velocity.
वेलोसिटी फाइंड आउट करना है और तुम्हें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है, तुम्हें टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो तुम्हें u पता है एंड यू नो t, यू नो u, यू नो t एंड यू हैव टू फाइंड v। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, तो ये फॉर्मूला आएगा v इज इक्वल टू u प्लस at, राइट। इसमें u हमें पता है 0, v हमें फाइंड आउट करना है, t हमें पता है, a कहां से मिलेगा। सो सी व्हाट इज गिवन नाउ, फोर्स दिया है, मास दिया है, तो फोर्स और मास को कनेक्ट करने वाला कौन सा फॉर्मूला है, न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो उसमें से हमें फोर्स पता है, मास पता है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यूज करके यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लो। इस एक्सेलरेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो u भी पता है, a भी पता है, t भी पता है, तो सब कुछ आ जाएगा यहाँ से, इजंट इट। सो दैट्स हाउ यू फिगर आउट कि पूछा क्या है, जो कुछ भी पूछा है और जो गिवन है उसको कनेक्ट करने वाली कौन सी फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, वो तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा। ओके, दैट्स द स्किल दैट यू नीड टू डेवलप। ओके, लेट अस सी द सॉल्यूशन नाउ। First, what are you going to do is going to use this formula, force is equal to mass into acceleration, right? यहाँ पे मास को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, सो मास फोर्स से डिवाइड हो जाएगा, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, राइट। सो फोर्स हमें क्या पता था, 4.002 into 10 raised to minus 7 divided by 75, this will come around 5.34 into 10 raised to minus 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ए का वैल्यू तुम्हें मिल गया इस फर्स्ट फॉर्मूला में से। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, v is equal to u plus at। So as Mahindra is sitting on the bench, his initial velocity is 0, u is equal to 0, ये हमने given में ही लिख दिया था, बराबर। I hope you have written that in the given, u is equal to 0 and assuming bench to be frictionless from formula 2, यहाँ पे formula 2 है, v is equal to ut, तो ut 0 हो गया, क्यों, क्योंकि u 0 है, राइट, तो ut 0 हो गया, प्लस at, a का वैल्यू क्या है, 5.34 into 10 raised to minus 9, 5.34 into 10 raised to minus 9 into t क्या है, 1 seconds, राइट। यहाँ ये भी तुमने गिवन में लिखा होगा, आई होप यू हैव रिटन दैट इन द नोटबुक, टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड्स, तो a का वैल्यू इनटू t क्या है 1, सो मल्टीप्लाई बाय 1, सो मल्टीप्लाई 1 इट विल रिमेन सेम, राइट। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 है, 0 से ऐड करोगे तो सेम ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 1 ऐड करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो भी वैल्यू सेम रहेगा। सो दिस इटसेल्फ इज योर वेलोसिटी। ओके, बट अभी क्या चेंज हुआ है, देखो नंबर सेम है बट यूनिट अलग है। यहाँ पे एक्सेलरेशन का यूनिट देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्योंकि एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे यूनिट मीटर पर सेकेंड है। ओके, नंबर सेम है बट यूनिट अलग है। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट क्या पूछा था कि वेलोसिटी चेंज होने वाला है क्या, और अगर चेंज होने वाला है तो कैसे चेंज होने वाला है, so that you have to explain. Okay, as Mahindra is moving towards Virat, the distance between them decreases, causing an increase in gravitational force. जैसे महेंद्र विराट के पास जा रहा है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, जैसे डिस्टेंस कम हो जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होता है, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय कैपिटल G मल्टीप्लाइड बाय m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो फोर्स न्यूमरेटर में, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स डिनोमिनेटर में, तो वो लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरा डिक्रीज, एक चीज डिक्रीज हो जाएगी तो दूसरी चीज इंक्रीज। तो जैसे ही डिस्टेंस कम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। फॉर अ गिवन मास ग्रेविटेशनल फोर्स बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इंक्रीजेस। तो अगेन अगर फोर्स इंक्रीज हो रहा है, सबसे पहली बार डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स इंक्रीज हो रहा है, फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स व्हाट दे हैव एक्सप्लेन्ड द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में तुम फॉर्मूला दे दो। ओके, a इज इक्वल टू एफ बाई एम, ये कहां से आया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो एक्सेलरेशन के लिए फोर्स डिवाइड बाय मास। ओके, ये मास जनरली यहाँ पे एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाइड होता है, सो मास को नीचे ले लिया, राइट। इसमें से हम क्या बता रहे हैं, जैसे ही फोर्स इंक्रीज होगा वैसे एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगी, दोनों न्यूमरेटर में। तो एज एक्सेलरेशन इंक्रीजेस वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजेस, राइट। जैसे एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा उतना वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा। तो पहले हमने क्या बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होने वाला है क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज हो गया, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो गया तो वापस वेलोसिटी इंक्रीज होने वाला है। सो दैट्स योर फाइनल आंसर, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो गया तो वेलोसिटी इंक्रीज होने वाला है। पुट दैट इन अ फाइनल आंसर। तो दो चीजें पूछी थी, महेंद्र's velocity after 1 second towards Virat will be 5.34 into 10 raised to minus 9 meter per second. Make sure you're writing the correct units and this is going to increase with time. जैसे time increase होगा ये velocity increase होने वाली है। Okay, great, we are done with our second problem for today. Last problem for the day, it's again a solved example on page number 7.
The gravitational force of 733 newtons acts on Mahindra, who is of mass 75 kg. ये महिंद्रा और विराट हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है इस चैप्टर में. So gravitational force दे दिया है and महिंद्रा का mass दे दिया है. Okay. Starting from rest, what will be Mahindra's velocity after 1 second if he is falling down due to gravitational force on Earth? Okay. महिंद्रा नीचे गिर रहा है अभी. महिंद्रा के साथ क्या क्या करवा रहे हैं? महिंद्रा को बेंच पे बिठा रहे हैं जिसपे फ्रिक्शन नहीं है. महिंद्रा को अभी नीचे भी गिरा रहे हैं. सो महिंद्रा ने बहुत सैक्रिफाइस किया है, बलिदान दिया है हमारे ग्रेविटेशन चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए. ओके. सो महिंद्रा नीचे गिर रहा है और 1 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा ये पूछ रहे हैं. ओके. अगर उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है. अगेन do the same thing, write given to find and figure out कौन से formulas use होने वाले हैं. I'm going to wait for 5 seconds for you to write all three. Okay. given भी लिखो, to find भी लिखो, कौन सा formula applicable है ये भी लिखना है तुम्हें. So I'll wait for 5 seconds for you all to do that. Okay, 5 seconds are up. I hope you pause the video and are ready with given, to find and which formula is to be used in this question in your notebooks. Okay. So given में सबसे पहली बात इनिशियल वेलोसिटी u 0 आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे बोला है राइट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया. नेक्स्ट फोर्स दे दिया. फोर्स क्या है 733 न्यूटन, तो ये यहाँ पे लिख दिया. महिंद्रा का मास दिया है 75 kg, वो लिख दिया. एंड टाइम 1 सेकंड के बाद पूछा रहे व्हाट विल बी महिंद्रास वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड, तो टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड लिखा है. ये गिवन हो गया. टू फाइंड में महिंद्रास वेलोसिटी पूछा है तो वेलोसिटी स्मॉल v आ गया. कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? इफ यू सी इट्स द एग्जैक्ट सेम एज आवर प्रीवियस सम में भी इनिशियल वेलोसिटी 0 था, प्रीवियस सम में भी टाइम 1 सेकंड था, प्रीवियस सम में भी फोर्स और मास पता था और वेलोसिटी पूछा था, तो एग्जैक्ट सेम फॉर्मूलाज यूज हो जाएंगे. पहले तुम फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यूज करके एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे और एक्सेलरेशन को इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके v फाइंड आउट कर लोगे. तो इट्स एग्जैक्टली सेम as our previous sum. Okay, so again I'm going to wait for 5 seconds. Now that you know कौन से फॉर्मूला यूज करने हैं, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, you should be easily be able to solve the problem. Okay, calculation काफी easy है. I'll wait for 5 seconds for you to again pause the video here and find the final answer. पूरा sum complete कर लो, calculations कर लो, final answer लिख लो. Okay, and then we will discuss the correct ones. Okay, I hope you are ready with the final answer. Let us discuss the solution now. Okay, so पहले मैंने क्या बोला था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यूज करो. तो यहाँ पे मास को डिनोमिनेटर में लेके जाओ, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास आ जाएगा. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास 733 by 75, that will come around 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फिर अभी ये तुम्हें एक्सेलरेशन मिल गया, अभी तुम्हें सेकेंड फॉर्मूला यूज करना है. v is equal to u plus at. So v u के जगह पे 0 डाल दिया है, यहाँ पे a के जगह पे 9.77 डाल दिया है एंड t है 1 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 9.77 ही आएगा. अगेन नोट, एक्सेलरेशन का भी वैल्यू 9.77 है, वेलोसिटी का वैल्यू भी 9.77 है, बट दोनों का यूनिट्स अलग है. एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड. यू हैव टू नोट दैट. And your final answer will be Mahindra's velocity after 1 second if he is falling down due to gravitational force of the earth is 9.77 meter per second. Put that in pencil box and you're done with your answer. So that is it for this learning session. Just check whether you have accomplished today's learning objectives or not. Will you be able to solve numerical problems based on kinematical equations of motion by yourself after having solved these 3 problems? Okay. If yes, then you have achieved today's learning session. If not, you need more practice. Okay, and tomorrow also in the next learning session we'll see a few more remaining problems based on the same thing, kinematical equations of motion, and then we'll be done with this chapter. Okay, so that is it for this learning session. I hope you understood everything and we'll see each other in the next one. Till then, bye and